یہ دیکھیں ایک کارڈ گر گیا. یہ ہمارے ہوٹل کا چھوٹا سا ریویو میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ہمارا ہوٹل، یہ اس کا روم 1 2 3 4 اور 5 بیڈز ساتھ ہی دیکھیں. اچھا ہوٹل ہے، اتنا برا نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ واش روم، اندر بات کرنے کے لیے چھوٹی سی جگہ. یہاں پہ یہ کبڈز، نیچے آپ کی سیف آپ کہہ سکتے ہیں جس کو. یہ چھوٹا سا ریویو تھا ہمارے ہوٹل کے روم کا. یہاں پہ بھی میں چیک کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، تو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. اور شہر مدینہ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہے وہ برکتوں کے لیے دعائیں مانگی. مکہ مکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر اور 1 گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر، اور مدینہ منورہ میں 1 نیکی 50,000 کے برابر اور 1 گناہ جو ہے وہ 1 ہی رہتا ہے. مکہ مکرمہ جیسے بڑی برکتوں والا شہر ہے، ایسے ہی شہر مدینہ بھی بڑی ہی برکتوں والا ہے. یہاں پر اللہ کا پیارا گھر ہے، تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری قبر کی زیارت کے لیے آیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. تو آپ چونکہ سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اس میں یہ آپ نیت ضرور کر لیجئے گا کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ذہن نصیب اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت جو ہے نا وہ فرمائے. انشاءاللہ جیسے ہی شہر مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو شہر مدینہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا. اس طرح راستے میں کوئی جگہ ہوگی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. جہاں راستے میں اگر سٹاپ ہوتا ہے کھانے وغیرہ کے لیے، جو وقت دیا جائے گا اس کی جو ہے وہ پابندی کیجیے گا. جہاں بس رکے گی اسی جگہ پہ آپ کو واپس اپنی گاڑی میں آنا ہوگا. تو یہ سب بھائیوں کا جو ہے وہ تعاون چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر، یہ راستے میں نکلنا، خرچ کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ہمارا سفر ہمارے لیے آسان بنائے. بس تھوڑا سا اور ٹائم رہ گیا مدینہ پہنچنے میں. ابھی 11 بج رہے ہیں اور انشاءاللہ ظہر کی نماز جو ہے نا ہم لوگ مسجد قباء میں پڑھیں گے. میرے جو ساتھ والے دوست ہیں میرے اور باقی جو بس کے لوگ ہیں وہ لوگ باہر گئے ہیں تھوڑا، لیکن میں بس میں بیٹھا ہوں. تو انشاءاللہ پھر مدینہ پہنچ کے میں آپ کو مسجد قباء میں ملتا ہوں. یہاں پہ گئے میرے سارے دوست.
तमाम हज़रात को मेरी तरफ से इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आमद। माशाल्लाह सबसे पहले आप मक्का तशरीफ लाए। मक्का वो किबलतैन मोहम्मद किबलतैन मतलब होगा। तमाम हज़रात को मेरी तरफ से इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आमद। माशाल्लाह सबसे पहले मक्का तशरीफ लाए, आपने उम्रा अदा किया। उम्र अदा करने के बाद आका की मोहब्बत में, मदीना की मोहब्बत में 500 किलोमीटर सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा वो बरकत रहमत वाला शहर है जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आपने हाजिरी दी, जरा गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जरा गौर। मैं आपको 2 हदीसें बयान करूंगा। आपकी हदीस मुबारक है कि मन ज़ारा कब्री का मन ज़ारा फी हयाती, इसका मफहूम है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, गोया कि उसने मुझे हयाती में देख लिया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पेश करूंगा, अल्लाह की तारीफ करूंगा, मदीने की तारीफ करूंगा, तो आपने खुलूस से दिल से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं। जब आप एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी नेकियां अता फरमाते हैं। दूसरा, हमें पता चलेगा आप हमारी बातें गौर से सुन रहे हैं। अर्ज कर रहा था, दूसरी हदीस मुबारक है, मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती। सरकार का फरमान है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुलाया है। पहले अपना घर दिखाया, उसके बाद मेरे हबीब का घर दिखा दिया है। इधर पैसे ज़र से कोई नहीं आता, आते हैं वही जिसको सरकार बुलाती है। आप इस मकाम पे आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। जब आप खुलूस से दिल से एक मरतबा दुरूशी पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला रहमती और बरकत नाज़िल फरमाती है। एक रिवायत के मुताबिक जब एक उम्मती खुलूस से दिल से एक मरतबा दुरूशी पढ़ता है ना, अल्लाह ताला एक फरिश्ता तैनात फरमा देते हैं। वही जो फरिश्ता है ना, दरूद का हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता है कि फलां बिन फलां ने ये हदिया भेजा, कबूल फरमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं। ये नहीं आप दुरूशी पढ़ते हैं ना, आपका दुरूद जो है ना सरकार के सामने पेश किया जाता है। तो आज कर रहा था, आज हम मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस ज़ियारत के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह सबसे पहला हमारा क़याम मस्जिद कुबा हो, मस्जिद कुबा तो माशाअल्लाह आपने कर दिया। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन के बाद हम जाएंगे एक बाग में, खजूरों का बाग है। आखिरी हमारी ज़ियारत होगी ग़ज़वा उहद। मदीना मुनव्वरा वो बरकत रहमत वाला शहर है। रोजाना 1,40,000 मलाइका आसमान से नाज़िल होता है। 70,000 फरिश्ता सुबह से शाम तक, फिर 70,000 फरिश्ता शाम से सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर हाजिरी देते हैं। जो एक मरतबा आ जाते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। आप खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत सरकार की उम्मती हैं। हम लाखों बार भी हाजिरी दें, करोड़ों बार भी हाजिर हम दे सकें, लेकिन नूरी फरिश्ते जो एक मरतबा आ गए सरकार के रोज़े पर, वो दोबारा नहीं आएंगे, वो लाइन में ही लगे रहेंगे। ये फजीलत हमें सरकार की तरफ से मिली है। इंशाअल्लाह सबसे पहली हमारा जो अगली ज़ियारत है वो है मस्जिद क़िबलतैन। पहले जाएंगे ग़ज़वा खंदक, उसके बाद मस्जिद क़िबलतैन। सबसे पहले इंशाल्लाह हम जाएंगे जंग की जंग बदर, दूसरी जंग की जंग उहद। कुफ़ार मक्का ग़ज़वा उहद के बाद मक्का जाते हैं, ग़ज़वा उहद के बाद वापस मक्का लौटते हैं दोबारा तैयारी करके, क्योंकि उहद के जंग बदर के मकाम पे 70 कुफ़ार मारे गए थे, 72 गिरफ्तार भी कर लिए थे। तो कुफ़ार मक्का जो थे बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके, उस दौर में 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर हमला किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला, आपने सहाबा कराम को इकट्ठा किया और कुफ़ार मक्का का मुकाबला करने के लिए हमला तैयार किया। सहाबा कराम ने अपने अपने मशवरे दिए। हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी ज़िंदगी में 3 बड़ी जंगें लड़ चुका हूँ। जब हमारी तादाद कम होती थी, दुश्मन ज़्यादा होता था, हम उनको रोकने के लिए अपने दिफा के लिए खंदकें खोदते थे। खंदक मतलब है गड्ढे खोदते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खंदक खुदवाई थी। खंदक मतलब है गड्ढे खोदे गए थे। ये खंदक जो थी 5 मीटर गहरी,
5 से 6 मीटर चौड़ी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी। ग़ज़वा खंदक से लेकर ग़ज़वा उहद तक, इसे कहते हैं ग़ज़वा खंदक। और इस मकाम का दूसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब। कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में इसका तफसीली जिक्र है। और इस मकाम का तीसरा नाम है सबा मसाजिद। अरबी में सबा सात को कहते हैं। जहाँ जहाँ सहाबा किराम के खेमे थे वहाँ मसाजिद बना दी गई थी। इंशाअल्लाह सबसे पहले हम पहुँचेंगे ग़ज़वा खंदक, वहाँ मसाजिद बनी है। जहाँ जहाँ सहाबा किराम के खेमे थे वो मकाम भी दिखाऊंगा जहाँ खंदक खोदी गई थी। ठीक है जनाब। इसके बाद हम जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन, तो किबलों वाली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ होकर के नमाज पढ़ी थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके में जाते हैं जहाँ ये मस्जिद क़िबलतैन है। वहाँ एक कबीला बाता बनु सलमा, उनकी मस्जिद है। तो एक सहाबी रसूल बीमार थे। दूसरे रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक दावत पे गए थे। जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है, ज्यादा मुत्तफक असर में है। असर की 4 होती है ना। अभी आपने 2 रकात ही पढ़ी थी, क्योंकि यहूदी जो आबाद थे ना वो भी आबाद कसते थे, क्योंकि यहूदी पहले भी बैतुल मुक़द्दस को मानते हैं। अभी आपने 2 रकात ही पढ़ी थी, दिल में ख्याल किया क्यों ना हमारा किबला बैतुल हराम हो। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को वही देकर भेज दिया और कुरान की दूसरे पारे का याद नाज़िल होती है। क़द नरा तक़ल्लुबा, आए महबूब दिल में सोचा है, वजहिका बिस्समा, बार बार आसमान की तरफ देखा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, क्यों ना हमारा किबला बैतुल हराम हो। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए महबूब अपना रुख अनवर चेंज कर लें। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में 2 किबलों की तरफ मुकर कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। तो जाहिर कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम मिला, सहाबा किराम के पीछे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे। जो भी पैगाम मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न लेके इस तरफ आ गए, सहाबा किराम पीछे चले गए। एक और भाई आती है, आए महबूब आपने तो मेरे हुक्म से अपना यानी ये अपना रुख चेंज किया, लेकिन सहाबा किराम जो पीछे नमाज अदा कर रहे थे उन्होंने नहीं पूछा कि आप रुख क्यों चेंज कर रहे हैं, आप रुख क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इन तमाम सहाबा किराम को बशारत दे दो जन्नत की। सिर्फ उन्हें नहीं, क़यामत तक जो लोग भी आएंगे इस मस्जिद की ज़ियारत करेंगे उन्हें भी खुशखबरी सुना दीजिए। ये मस्जिद क़िबलतैन मुजाहिद किराम, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में 2 किबलों की तरफ कैसे नमाज पढ़ी, से कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। तो मुजाहिद किराम सबसे पहले इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन। मुजाहिद किराम अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुलाया है। इधर पैसे ज़र से कोई नहीं आता, आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। तो मुजाहिद किराम ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल यहाँ गुजारे हैं। 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इस मदीना शहर के अंदर गुजारे हैं। मदीना बरकत और रहमत वाला शहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की बरकत के लिए दुआ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मदीना में 1 का खाना 2 खाएंगे और 2 का 4 और 4 का जो खाना है 8 के लिए काफी होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करती जाए। देखिए आपको ये पहाड़ देखते हैं, जबल देखे हैं, लेकिन अल्लाह की तमाम नेमतें इस मदीना के अंदर मौजूद है। अल्लाह की तमाम नेमतें इस मदीना के अंदर मौजूद है। तो जाकराम अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने भी इस मदीना के अंदर बहुत बड़ी बरकत रखी है। इसके अलावा मदीना में एक जन्नत का खिता है जिसे रियादुल जन्ना कहते हैं, वहाँ भी आपने हाजिरी देनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तु रियादुल जन्ना, सरकार का फरमान है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जो जगह है ना वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। रियादुल जन्ना का एक फरमान होता है, इंशाल्लाह वो भी आपका हल हो जाएगा। तो आप रियादुल जन्ना में हाजिरी देंगे तो इंशाल्लाह आप ये देखें कि हम रियादुल जन्ना में बैठे हैं, ये समझे हम जन्नत में बैठे हैं। क्योंकि आजकल परमिट का थोड़ा मसला है, तो लोग ज्यादातर परेशान होते हैं कि हमारा परमिट नहीं हुआ। अगर ना भी हो तो परेशान होने वाली की बात नहीं है, क्योंकि सरकार का फरमान है कि मन ज़ारा कब्री कमन ज़ारा फी हयाती। सरकार का फरमान है कि जिसने मेरा रोजा देख लिया उसने मुझे देख लिया। तो आजकल जो पहले परमिट नहीं था, ये कोरोना के बाद परमिट हुआ। पहले लोग जाते थे, 200 लोग जाते थे, फिर दूसरे आगे चले जाते थे। इस तरह ये मामला चल रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने परमिट का मामला जो नुसुक है ना, उधर तो नहीं है मेरे ख्याल में, मक्का में नहीं था ना, लेकिन मदीना में है। ये रियादुल जन्ना के लिए ना आपको परमिट का ये अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ना भी हो तो परेशान होने वाली की बात है। काफी लोग परेशान होते हैं कि हमारा तो परमिट नहीं हुआ, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोई मसला नहीं है, सरकार का फरमान है जिसने मेरा रोजा देख लिया उसने मुझे देख लिया। और दूसरी हदीस मुबारक है जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत मंजूर